हमसे प्रतिदिन आपने प्रभु जी वचन के द्वारा So we shall come to the sharing of the word of God. So आज तो Sister Lita on the line. Yes, brother. Yeah, okay. So before we come, as I said, we can translate that we'll have breaking of bread around 12:30 p.m. तो 12:30 बजे जो है हमारा जो प्रभु भोज होगा. So you can take part if you are born again and living in fellowship with the Lord. आप उसमें सहभागी हो सकते हो अगर आप नए जिनमें जन्मे हुए हो और परमेश्वर के संग अच्छी संगति में रह रहे हो. And were water baptized. और आप बपतिस्मा लिया है आपने. And then you will pray and then we'll have it. So you can have a piece of bread or chapati. You can keep with you. तो हम प्रार्थना करने के बाद आप एक चपाती का टुकड़ा या तो फिर ब्रेड कुछ अपने हाथ में रख सकते हैं. Or if you don't have that, you can have a piece of biscuit also. अगर आपके पास वो भी नहीं है तो एक बिस्किट भी आप रख सकते हैं. For a drink, you can have any fruit juice or black coffee or tea or anything like that. तो अगर वो जो दाखरस हम पीते हैं उसके बजाय हम चाय रख सकते हैं, कोई जूस रख सकते हैं या काला चाय कुछ रख सकते हैं. So then we can celebrate the Lord's death. तो हम यीशु का जो अपना प्रभु का जो मरण है उसे मना सकते हैं उसमें. So today is an opportunity for us to testify how the Lord is leading us to follow Him. तो आज हमारे लिए मौका है परमेश्वर के लिए गवाही देने के लिए कैसे हमें परमेश्वर अगुवाई कर रहे ताकि हम उनका पीछा कर सके. The Lord will fills us with the Holy Spirit. परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरे. When we repent and have faith in Jesus Christ. जब हम पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं. And He can deliver us from our sins. वो हमें अपने पापों से छुड़ा सकते हैं. We live in the new covenant. हम नए करार में जीते हैं. Where the Holy Spirit is poured upon us. और तभी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेल दिया जाता है. This was not there in the old covenant, all the saints there, but now God has given us a privilege that the Holy Spirit, the power of God, comes into our life. तो पुराने करार में हम देखते हैं जो संत लोग हैं उनको ये सौभाग्य नहीं मिला, परंतु इस नए करार में परमेश्वर ने सौभाग्य को दिया है कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेल दिया जाए. He can cleanse us from our sin and set us free from all the sins that we are under bondage. तो हमें सारे पापों से छुड़ा सकते हैं और जितने पापों के बंधन में हम पड़े हुए हैं उसमें से भी हमें आजाद कर सकते हैं. One by one, over a period of time, one by one, all the different types of sins, we get increasing deliverance. तो एक एक करके जो जितने भी पाप है उनमें से हमें प्रतिदिन छुड़ाते उसमें से छुटकारा मिलते जाएगा. That is why Jesus Christ is known as Christ or the Anointed One. इसलिए यीशु मसीह को कहा गया है मसीही या अभिषेक किया हुआ. Jesus was anointed so that we also can be anointed. अगर वो अभिषेक किया हुआ है तो हम भी उस अभिषेक को पा सकते हैं. So that we can live as Jesus lived. ताकि हम यीशु मसीह जैसे जिए वैसे हम जी सके. And our inside, our character will change, and also our life and the way we speak will change, and the way we behave will change. हमारा जो चरित्र बदल जाएगा, हम जिस तरीके से बातें करते हैं वो बदल जाएगा, कैसे हम अपने जीवन को जीते हैं वो भी बदल जाएगा. God starts doing a work in our life from inside, then comes to the outside. तो परमेश्वर हमारे अंदर से जब काम करना चालू करेंगे, अंदर से लेके बाहर तक सब कुछ परमेश्वर बदल देंगे. So we see this verse in Luke chapter 4. ये वाक्य हम देखेंगे लूका की 4वां अध्याय. Verse 18. 18 वचन. 18 and 19. 18 और 19 वचन. The Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, and to set free those who are downtrodden, to proclaim the favorable year of the Lord. कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं. This is quoted by Jesus Christ when he was speaking in in his own city in Nazareth.
and he quoted from Isaiah chapter 61. तो हम देखते हैं जब यीशु मसीह नाजरेत के शहर में थे तो उन्होंने इस वाक्य को बोला जो यशायाह के 61 अध्याय में लिखा हुआ है। So the Holy Spirit was upon Jesus Christ, and that is why he could do all these things. तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर था, इसलिए ये सब काम वो कर पाए। And he lived a pure and sinless life because of the power of the Holy Spirit. और उन्होंने एक साधारण और एक शुद्ध और सरल जीवन जिया पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। So when he went for baptism, the Lord sent the dove from there, and he said, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." ताकि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा जो एक पवित्र कबूतर के नाई उतरते परमेश्वर कहते हैं ये वो मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं प्रसन्न हूँ। That is why he is known as Jesus Christ. इसलिए उनको यीशु मसीहा ऐसे कहा जाता है। Christ means the anointed one. मसीहा का मतलब है जो अभिषेक किया हुआ। And he has come to anoint each one of us with the Holy Spirit. और वो आए हैं हम सभी को पवित्र आत्मा से अभिषेक करने के लिए, That we also can be set free in our own life. ताकि हम भी अपने जीवनों में हम सारी चीजों से छुड़ाए जाए। We can be set free from all our sin. हम सारे जो पाप है उसमें से छुड़ाए जाए। That is a great thing. In the old covenant, they could not be set free. तो ये जो पुराने नियम में बड़ी बात थी, वो कभी भी पापों से मुक्ति नहीं पा पाए। The old covenant, they had all the preaching, they had teaching, they had healing, and so many other gifts they had, but they had no deliverance from sin. तो पुराने करार में हम देखते हैं बहुत सारी चंगाई थी, शिक्षा थी, बहुत सारे अद्भुत चमत्कार भी हो सकते, परंतु उनको पापों से छुटकारा नहीं मिल सकता था। There had a lot of singing and praise and worship and all these things, but there nothing was there to deliver them from sin. तो वहाँ पे बहुत सारे गीत गाते थे, स्तुति आराधना बहुत कुछ कार्य होते थे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनको पापों से छुड़ा पाए। Everything was on the outward. सब कुछ बाहरी रूप से था। But the Holy Spirit comes, something takes place inside our lives, and from inside our lives we become a blessing to others. तो जब पवित्र आत्मा आते हैं तो हम अपने अंदरूनी जीवन से दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाते हैं। So Jesus said in verse 18, "The Spirit of the Lord is upon me, so that I may preach the gospel to the poor." तो 18 वचन में लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुना पाऊं। And what is this gospel? The good news और ये सुसमाचार शुभ संदेश क्या है? that you can be free. We can be free from our sin. ये है कि हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। The whole world is under the power of the evil one, under sin. तो पूरी दुनिया जो है ये पूरे पाप और बुराई के इसमें दबा हुआ है। And those who want to be delivered from them they are the poor, will cry out to God, and God will send them the Holy Spirit. तो जो लोग इस पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो कंगाले हैं, जो परमेश्वर की ओर पुकारते हैं, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा को उनके ऊपर भेजते हैं। So when we cry out to God, like the poor man cried, Psalm 34 says, "This poor man cried, and the Lord heard him and delivered him." तो जैसा भजन संगीता 34 में कहा गया है कि एक कंगाल ने पुकारा और परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, तो वैसे ही एक कंगाल के जैसे परमेश्वर की ओर हमें पुकारना है। There are many people who do not want to be delivered from their sin. They only want to do delivered from poverty and sickness. For them, this is not the gospel. तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस पापों से जो है मुक्ति नहीं पाना चाहते, परंतु उनको मुक्ति चाहिए, उनकी गरीबी से, उनके सारी बीमारियों से सिर्फ उनको मुक्ति चाहिए। God heals people and delivers, gives us, blesses us so many times. The main purpose for us is that we be delivered from our sin. तो बाकी जो चंगाई है, बाकी सब बातें बाद में मिल जाएगी, परंतु हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें पापों से छुटकारा मिले। And then it says in verse next, he has sent me to proclaim release to the captive. और फिर बाद में लिखा हुआ है कि जो बंधे हुए हैं उनको छुटकारा देने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। Captives means we are under bad habits, and so many habits we have got. तो बंधुओं का अर्थ ये है कि हम बहुत सारे बुरी आदतों के उसके बंधन में पड़े हुए थे। Like a prison, we are under the control of the devil. जैसे बंदी गृह में होते हैं, वैसे ही हम शैतान के नियंत्रण के अधीन में थे। All bad, sexual, impure thoughts. सारे जो अश्लील गंदे विचार, all hatred thoughts, revengeful thoughts,
सारे जो घृणा की सोच विचार और बदला लेने की सोच विचार, all unforgiving thoughts, क्षमा ना करने का विचार, all sorts of laziness, सारी आलसपन and all sorts of greediness for food and for so many other things. और खाने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए बहुत सारा लालच की बात, And all these things that we are under bondage, we just want to seek our own and seek our greatness. तो हम इन सारे जो चीजें उसके बंधन में पड़े हुए थे, हम अपनी महानता को खोजते हुए बैठे थे। And when the Lord comes, He releases us from this, the power of the devil. तो जब परमेश्वर आते हैं तो हमें ये जो शैतान का सामर्थ है उसमें से हमें छुड़ाते हैं। There are so many people, so many believers who were worshipping idols and under the lot of curses. The Lord has released us from all the curses when we repent and come to Him. तो बहुत सारे विश्वासी हैं जो मूर्ति पूजा में पड़े हुए, तो जब परमेश्वर आते हैं तो उनको इन सारे श्रापों से, इन बंधनों से परमेश्वर छुड़ाते हैं उन्हें। There are so many people who have lived very bad lives. Their forefathers have lived bad lives and God has released us from all those evil curses which came upon us. तो हमारे जितने भी पूर्व पिता लोगों ने जितने भी बुरे पाप किए हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आने के बाद उन सारे जो बुरे पापों से, उन श्रापों से हमें उन्हें छुड़ा लेते हैं। We belong to the family of God, Jesus Christ, and our Father is God, and there is no curses, there are only blessings. तो अभी हम जो यीशु मसीह के परमेश्वर के उस परिवार के अंदर है, तो अभी हमारे अंदर कोई भी श्राप की बातें नहीं है। Earlier our father was the devil, and now the Father is Heavenly Father. पहले जो हमारा पिता था वो शैतान था, परंतु अभी हमारा पिता स्वर्ग में है, वो पिता है। People who are under the devil are full of lies and anger and hatred. जो शैतान के अधीन में है वो लोग पूरे गुस्से से, नफरत से और विरोध से भरे हुए हैं। The devil is the father of all lies, क्योंकि जो शैतान है सारे झूठ का पिता है and he's a murderer. और वो घात करने वाला है। That means he gets angry and wants to kill people. इसका मतलब ये है कि तुम क्रोध में आ सकते हो और लोगों को मार भी सकते हो उसमें। That means people are busy backbiting and gossiping and they're destroying other people's reputation. इसका मतलब ये है कि लोग हैं बहुत सारी बातें गपशप करते हैं, बातें करते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं, दूसरे लोगों का जो सम्मान है उसे खराब करते हैं। There are so many Christians also under the power of the devil. तो बहुत सारे विश्वासी भी हैं जो शैतान के उस सामर्थ के अधीन में हैं। But the Lord has come to send us the Holy Spirit, fill us with the Holy Spirit so that we can be released. परंतु परमेश्वर आए हैं ताकि हमें पवित्र आत्मा दे सके और उन सारे सामर्थ्यों की अधीनता से हमें छुड़ा सके। Release, and now we will follow the Lord and not follow our sinful habits. तो उसमें से मुक्ति पाकर हम परमेश्वर का पीछा करें, ना कि हमारे बुरी आदतों का। And then it says, and recovery of sight to the blind. और फिर लिखा हुआ कि और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार। Now we see the Bible and now we see God's word as the most important thing. तो अब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वही सबसे मुख्य है। First we are blind to the things of God. पहले हम परमेश्वर की जो बातें हैं उसके लिए अंधे थे। We couldn't see eternal things. Now we see eternal things are more important than temporal things. तो हम तभी अनंत जीवन को नहीं देख पाते थे, परंतु अब हम देख पाते हैं कि अनंत जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है इन सांसारिक चीजों से। 1 Corinthians chapter 4 it says, we look not at the things that are seen but the things that are unseen. 2 Corinthians chapter 4, we'll turn to that. दूसरी कुरिन्थी 14 अध्याय में लिखा है कि अभी जो हम जो दिखता है उसे नहीं देखते, परंतु जो अंधे की चीजें हैं उसके ऊपर अपना मन लगाते हैं। 2 Corinthians chapter 4 verse 18. दूसरा कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 18 वचन। Well, we look not at the things that are seen, but at the things which are not seen. The things which are seen are temporal, but the things which are seen are eternal. और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अंधे की वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है, परंतु अंधे की वस्तुएं सदा बनी रहती है। Yes, we see the character of God. A good character is more important than all the earthly goodness. तो हमको हमारे लिए जो स्वर्गीय जो अनंत काल के जीवन की बातें वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है इन संसार की बातों से। People in this world are blinded. They cannot see the glory of God. इस दुनिया के संसार के जो लोग हैं वो अंधे हैं, वो परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाते। They only see the glory of this world. वो सिर्फ इस संसार की महिमा की बातों को देखते हैं। What is the glory of this world? इस संसार की महिमा की बात क्या है? Having a lot of riches and property. बहुत सारा संपत्ति बनाना, बहुत सारा प्रॉपर्टी बनाना,
having a beautiful face and a beautiful body, बहुत अच्छा एक चेहरा होना और सुंदर शरीर होना, and to have become very famous in this world. दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूरता पाना. But we know all these things are for a short time, because so many people have all these things, they die and everybody forgets about them. तो हमें पता है ये सारी चीजें थोड़े समय के लिए है और बहुत सारे लोग जो है मशहूरता में रहते हुए भी उन लोग का अंत हो गया और उन लोग को सब लोग भूल भी गए. But the one who does the will of God abides forever. और जो परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करता है वो हमेशा स्थिर रहता है. So that's why the Holy Spirit shows us the glory of Jesus. इसलिए पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह की महिमा को दिखाते हैं. That in this world that we live, we should look at Jesus and live like Jesus. और इस संसार में जीने के समय हम यीशु मसीह की ओर देखना है और यीशु मसीह के समान जीना है. And that is why he opens our eyes. इसीलिए वो हमारी आंखों को खोलते हैं. And he said that sin is very dangerous for us, and now we have to live for the Lord and not live for ourselves. तो ये जो पाप है हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हमें अपने आप के लिए नहीं जीना है, अभी परमेश्वर के लिए जीना है. And then it says to set free those who are downtrodden. और फिर लिखा हुआ है और कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए. Now there are people who are downtrodden. और भी लोग हैं जो कुचले हुए जाते हैं. Means who are the downtrodden people who are under so much of poverty. तो कुचले हुए लोग हैं जो बहुत गरीबी में हैं. Those who are rejected by people. वो लोग दूसरे लोगों से नकारे हुए लोग. In our country, we have people who are on the lower caste people. They are downtrodden. They are made slaves, and nobody regards them at all. तो हमारे भी देश में हम देखते हैं बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत जो निचले स्तर के लोग हैं, जो लोग उनको गुलाम बना के रखते हैं, कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं है. People who are widows and orphans. और जो लोग अनाथ हैं और जो विधवा लोग हैं, They're extremely poor. वो बहुत ही गरीब रहते हैं. Other people take advantage of them. और बहुत सारे लोग उनका फायदा भी उठाते हैं. And the Lord has come to set us free. और परमेश्वर आए हैं ताकि हमें उनमें से छुड़ाएं, so that we can have fellowship with Him. ताकि हम परमेश्वर के संग संगति में रहें. We become heirs of the Heavenly Father. ताकि हम जो परमेश्वर पिता है उनके वारिस बन जाए. We sang the song, "We are heirs of the Father." जैसे हमने गीत गाया कि हम जो स्वर्गीय पिता है उनके वारिस हैं. We are citizens of heaven. हम जो है स्वर्ग के जो लोग हैं. That's what the Holy Spirit has come to do in each one of our lives. तो वही पवित्र आत्मा हम हर एक के जीवन में करने आए हैं. And that is a wonderful privilege that whatever we are, whatever our background is, God lifts us up and lifts us up into the heavenly places with Him. तो हमारा जो भी बैकग्राउंड कितना भी हो, हम जहाँ कहीं भी हो, परमेश्वर हमें ऊंचे उस स्वर्गीय स्थानों में बिठाते हैं. All those who repent and turn to God, God lifts them up and brings them and makes them sit next to Him. जो भी पश्चाताप करते हैं, मन फिरा के आते हैं, परमेश्वर उन्हें ऊंचे उठाते हैं और स्वर्गीय स्थानों में बिठाते हैं. The thief on the cross came to paradise because he repented. He said, "Lord, I'm sorry, and please remember me." और जो क्रूस में जो चोर था वो स्वर्ग में इसलिए जा पाया कि यीशु मसीह को वो मन फिरा के बोलने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं इसमें से भी पश्चाताप करता हूँ. So he died on the cross. He straightway went to heaven. और वो क्रूस पर मर गया और सीधा वो स्वर्ग में पहुंच गया. This is the wonderful gospel. It says to proclaim for 19 the favorable year of the Lord. तो जैसे और लिखा हुआ है और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो. God has a plan for our welfare and not for our calamity. परमेश्वर की जो योजना है हमारे भलाई के लिए है, हमारी विपत्ति के लिए नहीं. When our minds are set on heavenly things, then it is always going to go well with us. अगर हमारा जो मन है स्वर्गीय चीजों पर लगा हुआ है तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा. People living in the world are wondering when will this coronavirus stop. तो इस संसार में रहने वाले लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोरोना वायरस कब खत्म होगा. So many Christians also are praying that it will stop, and trying to rebuke the virus. तो बहुत सारे मसीही हैं, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं और इस कोरोना वायरस को डांट के प्रार्थना कर रहे हैं. But they are not praying that they be delivered from their sin. परंतु वो ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि उनको पापों से छुड़ाया जाए. The first thing that we should pray is not about the coronavirus, but we should pray about that we should be delivered from all our evil tendencies.
तो पहली बात हमें प्रार्थना करनी है इस कोरोना वायरस के लिए नहीं, परंतु हमारे जो बुरे विचार है, बुरे पाप है, उसमें से हमें छुड़ाए जाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। God has not primarily come to heal us from our sicknesses. तो परमेश्वर हमें मुख्य तौर पर हमारी बीमारी से चंगा करने के लिए नहीं आए। The 10 lepers came to Jesus, but only one person came to give thanks to God. 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आते हैं, परंतु चंगाई पाकर सिर्फ एक ही व्यक्ति वापस आता है धन्यवाद देने के लिए। 9 went out and then they went their own way. और जो बाकी 9 लोग थे, उन लोग के रास्तों में उन लोग चले गए। Only one got salvation. एक ही को उद्धार मिला। So 9 people who were healed went to hell, and one only came to the kingdom of God. तो 9 लोग जिनको चंगाई मिली थी वो नरक की ओर चले गए, और सिर्फ एक जो उसमें से वापस लौट कर आया वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाया। There are so many people who get so much healing, but they don't thank God, and many of them go to hell. तो बहुत सारे लोगों को चंगाई मिलती है, परंतु वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते, इसके लिए बहुत सारे लोग नरक की ओर चले जाते हैं। God does so much good to all the people of this world and to so many of His believers, of His children, but then most of the people are so unthankful to God. तो परमेश्वर इस संसार के लोगों के लिए और उनके बच्चों के लिए बहुत सारे भले काम करते हैं, परंतु हम देखते हैं बहुत सारे लोग परमेश्वर की ओर उस आभारीपन को रखते नहीं हैं। Because their minds are not set on heavenly things but on earthly things. क्योंकि उनका जो मन है स्वर्गीय चीजों पर नहीं लगा है, सांसारिक चीजों पर लगा है। The Lord gives us the years that are favorable. तो परमेश्वर इसलिए हमें ऐसे वर्ष देते हैं जो हमारे लिए भले होते हैं। And what is this favor? और ये जो भला क्या है? That we will have peace and joy abundantly and love of God abundantly more and more with every passing month and year. तो हमारे जीवन में शांति, आनंद और परमेश्वर का प्रेम हर साल बीतते और बढ़ते जाए, वही है। We can love our enemies and love our wives and husbands and love all our brothers and sisters more and more. हम अपने जो शत्रु हैं उनसे प्रेम रख सकते हैं, हमारे पति से, पत्नी से, हमारे भाई बहनों से, सारे लोगों से और ज्यादा प्रेम कर सकते हैं। And it can go better and better with us every year. और हर वर्ष भर वर्ष ये सब कुछ हमारे जीवन में बेहतर होता जाएगा। And along with that, God will take care of all our needs. और उसके संग ही परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों का भी ख्याल रखेंगे। That is the favor of God. वही है परमेश्वर की जो भलाई हमारे जीवन में। That is, God is well pleased with us. इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत प्रसन्न है। Among the children of Israel, God was only pleased with Joshua and Caleb and Moses. तो जो इस्राएल जन में से सिर्फ योशुआ, कालेब और मूसा से ही परमेश्वर प्रसन्न थे, सिर्फ Because they sought after God. क्योंकि वो परमेश्वर का खोज करते थे। And because of that, it went well with them. इसीलिए उनके साथ सब कुछ अच्छा हुआ। All the other children of Israel, they enjoyed so many miracles, but it went badly with them because they just wanted earthly things. और बाकी जितने इस्राएल जन थे वो सिर्फ चमत्कार पाए और वो इस संसार की चीजों से ज्यादा प्रसन्न रहते थे, इसके लिए सब कुछ उनके साथ बुरा ही हुआ। The Holy Spirit has come to show us the favor of God. तो जो पवित्र आत्मा आए हैं ताकि परमेश्वर की जो कृपा हम पर हुई है वो हमें दिखा सके, So God can be close to us, ताकि परमेश्वर हमारे करीब हो, that we can have fellowship with Him, ताकि हम उनके साथ अच्छी संगति में रहें, that we desire God more and more in our lives and less of the world. फिर हम अपने जीवन में परमेश्वर को परमेश्वर की ओर ज्यादा इच्छा रखेंगे, संसार की अभिलाषा कम होती जाएगी। And this is the purpose that God has, purpose of God in our own life. और यही उद्देश्य है परमेश्वर का हमारे जीवन के ऊपर। And when Jesus took the book and read this passage, then He sat down and said that today this scripture is fulfilled in your hearing. तो जैसे ही यीशु मसीह ने Verse 21. और 21 वचन में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने इस वाक्य बोल के बैठ गए तब उन्होंने कहा कि ये जो लिखा हुआ बात आज तुम्हारे सामने सब कुछ पूरा हुआ है। It is good to hear the word of God. तो आज तुमने परमेश्वर के वचनों को सुना है। And then today only this wonderful thing can happen. God can fill you with the Holy Spirit. तो आज ये अद्भुत चीज होगा और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को देंगे। And this can be true in each one of our lives. और ये हम हर एक के जीवन में सच्ची बात हो सकती है। In Hebrew says that today is the day of salvation. इब्रानी में लिखा है कि आज का दिन उद्धार का दिन है। So today, whatever the problem is, we can be filled with the Holy Spirit and we can get saved. तो आज कोई भी समस्या होने दो, हम पवित्र आत्मा से भर सकते हैं और हम बचाए जा सकते हैं। All the problems of life, every day there are the problems, but God gives us, will enable us to give the victory by the power of the Holy Spirit. हमारे जीवन के प्रतिदिन में समस्याएं होती है, परंतु परमेश्वर हमें सामर्थ देता है कि सारी चीजों के ऊपर हम जय पाके आगे बढ़े।
victory over high thoughts and proud thoughts and selfish thoughts and immoral thoughts. हमारे जो बड़े विचारे, ऊंचे विचारे, अहंकारी विचारे, उनके ऊपर, अश्लील विचारे, सारी चीजों के ऊपर हम जय पाए। Hallelujah. That is a wonderful thing that God has done, can do in each one of our lives. तो यही है अद्भुत बात, जो अनोखी बात परमेश्वर हम में से हर किसी के जीवन में कर सकते हैं। And when God fills us with the Holy Spirit, we can also be a blessing to others. और जब पवित्र आत्मा से परमेश्वर हमें भरते हैं तो हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकते हैं। We become a light to the world. हम इस संसार के लिए एक ज्योति के समान बन सकते हैं। And when we become a light, all the darkness of the devil and darkness in the lives of people around us also will go away. और जब हम ज्योति बन जाएंगे तो संसार में जितनी अंधकार है, हमारे इर्द गिर्द के लोगों में जितनी अंधकार है, वो सब कुछ बाहर हो जाएगी। We can become a blessing. हम एक आशीष का कारण बन सकते हैं। When there is a light in a certain house where there is no electricity, that light is such a blessing. तो जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे अगर कोई प्रकाश होता है तो उनके लिए बहुत ही आशीष का कारण होता है। And people like to come in the light. और लोग चाहते हैं उस प्रकाश में आने के लिए। And then we can show them the goodness of God that God has done in our own life, and then they will be set free from all their sins and all their bad habits. तो फिर हम उनको कह सकते हैं परमेश्वर की भलाइयाँ जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है, और फिर वो जो लोग आए हैं वो भी उनके जीवन से, सारे पापों से, सारे अंधकार से वो भी मुक्ति पा सकते हैं। And we can proclaim the good news. और हम परमेश्वर की जो सुसमाचार है उसका प्रचार कर सकते हैं। Others will see the good that God has done in our lives. और दूसरे लोग देख सकते हैं कितना भला काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया हुआ है। And that is the meaning of the anointing of the Holy Spirit. और वही है अर्थ पवित्र आत्मा से अभिषेक किए जाने का। That is the purpose of why Jesus came into this world. और वही उद्देश्य के साथ यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। So that is why if anybody says that we cannot have victory over sin, that is the Antichrist. अगर कोई कहता है कि हम पाप के ऊपर जय नहीं पा सकते, उसका मतलब वो मसीह विरोधी है। So we must turn away from such people. और हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। And we must have faith in the Lord Jesus Christ. The Lord will give us victory over all our sin. तो हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है, और यीशु मसीह हमें सारे पापों के ऊपर जय देंगे। God has done this wonderful work in each one of our lives, brothers and sisters. और परमेश्वर ने इस भले काम को हम में से हर किसी के जीवन में किया है, भाइयों बहनों। And this will increase more and more as we obey God. और ये हमारे जीवन में और बढ़ता जाएगा जैसे ही हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते जाएंगे। And as we obey God, more the power of the Holy Spirit will come upon us more and more. और जितना हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते जाएंगे, उतना अधिक परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर भरते जाएगा। So, my dear brothers and sisters, we can all give a testimony of what God is doing in our life and how, by faith, we can believe and trust in Him. तो हम भाई बहनों सब गवाही दे सकते हैं परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, और उनके पे विश्वास करने के द्वारा, भरोसा करने के द्वारा हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। For 2 or 3 minutes, we can just give thanks to God and say, "This is what God is speaking to me." Don't speak more than 1 or 2 verses. That's all, and just open your mouth and give thanks to God. तो 2 या 3 मिनट के लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है उसके बारे में बता सकते हैं। 1 या 2 वचन से बातें कीजिए, उसके ज्यादा नहीं। So we have got about 45 minutes. हमारे पास 45 मिनट बाकी है। So let us use this time, each one of us, to give thanks to God and to give glory to God. तो ये समय का हम इस्तेमाल करेंगे कि क्या कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा दे सके, उनको धन्यवाद दे सके। And confess our faith that God is going to go well with us. और अपने जो विश्वास है उसको मान ले, कबूल कर, ताकि सब कुछ हमारे जीवन में भला हो। It must have gone badly in the past, but now, from now onwards, God has put the spirit of faith into our life that will surely go well with you, with each one of us. पहले के समय में भले ही कुछ बुरा हुआ होगा, परंतु अभी परमेश्वर का विश्वास है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में और दृढ़ता से डाली है, तो हमारे जीवन में आगे सब कुछ अच्छा ही होता जाएगा। So we can start now with Brother Parantaman, and then others can share very briefly. Parantaman can speak in English. There won't be any translation. Let's open our mouth and give thanks to God. I thank God for the today encouraging word. Okay, sister can translate also if you want. Sorry. Yes, brother. Yeah, you can translate, Parantaman. धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को आज के दिन के लिए। So what God is doing some work in my life. तो परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ काम कर रहे हैं। So we know that we have to fight for our good faith. तो हमें पता है कि हमें लड़ना है हमारे अच्छे विश्वास के लिए। Because
without faith we cannot please God. क्योंकि इस विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। So in my life I have to keep the faith in my life. तो मुझे मेरे जीवन में इस विश्वास को रखे रहना है, पकड़े रहना है। So even Jesus mentioned that in the Matthew chapter, when the Son of Man come, whether he will see the faith on people. जैसे ही मत्ती की किताब में यीशु मसीह ने कहा कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो मनुष्य में, इंसान के बीच में विश्वास को देख पाएगा कि नहीं। Because whatever the work God is doing in my life, it is as we heard, it is not for calamity, it is for my own good. तो जो भी परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, जैसे हमने सुना, वो मेरी विपत्ति के लिए नहीं है परंतु मेरे भलाई के लिए है। So even if some in the past life we murmur or grumbling or complaining, so it is not a matter, but we can come to God and we can believe on God and we can confess our sin and we can reconcile. तो पुराने जीवन में हमने कितना कुड़कुड़ाई किया रहेगा, शिकायत किया रहेगा, कुछ भी किया रहेगा, परंतु अभी भी हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, विश्वास करके मन फिराकर परमेश्वर को अपने जीवन में फिर से उनका शक्ति के द्वारा, विश्वास के द्वारा आगे जा सकते हैं। So we also recently heard that Job wife. Sorry brother. Job wife. Job's wife. अच्छा, अय्यूब के बारे में। Yeah. So she mentioned she told to his husband Job, curse God and die. तो अय्यूब को उसकी पत्नी बोलती है कि तू परमेश्वर को शाप दे दे और मर जा। But God is he's not take any revenge or he's not kill or he's not give any disease to her. तो हम देखते हैं वो जो स्त्री है उसको परमेश्वर ने कोई श्राप नहीं दिया, कोई बीमारी नहीं दी, उसको बदला भी नहीं लिया उसका। But God blessed with 10 children again. परंतु उसको परमेश्वर ने और 10 संतान देके उसको आशीष किया। So whenever he get a new child, Lord, I am very sorry, I murmur or grumbling, but you are faithful God, but you given the child to me now. तो जब भी एक संतान होता है तो कहती रहेगी, परमेश्वर मैंने इतना कुड़कुड़ाया, इतना दुत्कारा, तो भी आपने मुझे ये संतान देके आपने मुझे आशीषित किया है। अभी I am the one asked my husband to curse God and die, commit suicide. तो मैं ऐसी औरत थी जिसने अपने पति को कहा कि अभी परमेश्वर को श्राप दे दे और खुदकुशी कर ले। But you are very merciful and you are very kind and you are very good God. But you given 10 children and also 3 daughters. They are very beautiful in the entire earth of. तो कहने लगी कि परमेश्वर आप कितने करुणामय हो, कितने भले हो, कितने अच्छे हो कि आपने मुझे 10 संतान दिया और 3 बेटियां दी जो इस संसार में के सारे लोगों से ज्यादा सुंदर थी वो। So that is what whenever we are against God, we should not go again back to God, but we have to go near to God. तो अगर हम परमेश्वर के खिलाफ कभी खड़े हुए हैं तो हमें पीछे मुड़ के नहीं जाना है, परंतु हमें परमेश्वर के करीब जाना है। और Because God will not despise anyone. क्योंकि परमेश्वर किसी को भी तुच्छ नहीं जानता है। He is always whenever we are committing sin, he used to cry, why he is not understand my will. तो जब भी हम कोई पाप करते हैं तो परमेश्वर रो के कहते हैं कि ये मेरी इच्छा को क्यों नहीं समझ पा रहा है। So we know that the Samuel also when he committed sin and God was grieved. तो हम देखते हैं समूएल ने भी जब भी उसने पाप किया तो परमेश्वर बहुत दुखी हो गए थे उसके लिए। Because whenever we are also committing sin, God is getting grieved and he is sad about me. तो जब भी हम कोई पाप करते हैं परमेश्वर हमारे लिए बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत रोते हैं हमारे लिए। So that is what God told me, that I should not murmur, I should not grumbling, I should not give any complaint against God or the situation, but I have to trust God because everything in God's hand only. तो यही परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि मुझे कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है, शिकायत नहीं करना है, परमेश्वर को शिकायत नहीं करना है, परंतु हमेशा सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप कर परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखना है।
just I realized now we are in the corona time, so we don't understand what is happening. But when the period is come over through or gone, now then we can give and thanks God like Job did. तो अभी जो कोरोना वायरस का जो माहौल है, तो अभी हम समझ नहीं पाएंगे, परंतु ये सारा समय बीत जाएगा, दूसरा कोई समय आएगा, तब हम परमेश्वर को महिमा और धन्यवाद दे सकते हैं, जैसा अय्यूब जो अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद देता है वैसे। Amen. Praise God. 1 Peter chapter 5, verses 6 and 7. If you will humble yourselves under the mighty hand of God, in his good time he will lift you up. Let him have all your worries and cares, for he is always thinking about you and watching everything that concerns you. So what I wanted to share is that these days the Lord is dealing with me in this area, that I should humble myself under the mighty hand of God and he will lift me up in his time. And the meaning of humbling myself in this area is to concern all my cares, worries and anxieties to him, to put all of these things in him. See, if I'm proud, I'll worry a lot. I'll think about how I can take care of myself, how will my future be, how will I be able to have victory over sin, how will I be able to take care of my needs. All these different thoughts and anxieties will come to me. But if I humble myself, truly humble myself under God's mighty hand, I'll be like that little baby in the child's, that one day old baby, 1 month old baby in their father and mother's arms, who will care and worry for me. I don't have to worry for myself, because my Father in heaven will worry for me and will care for me. God is teaching me. The devil is tempting me with thoughts of anxiety, worry, fear, and all these negative thoughts. But the Lord is telling me that, don't worry about what the devil tempts you with or what your own lust tempt you with. Just trust in me. Just see this. Just see the Bible. Read the Bible. See how all the saints in the Bible trusted in me and how they endured till the end. See how Job, in the midst of his sufferings, he trusted in God. And he made through. He did not quit. God knew that Job would make it through. That's why God allowed Satan to test him. Even then, even when Job made mistakes in his speech, God corrected him. God didn't send him to hell for that. God corrected him and made him all right. And at the end, God blessed him double. In the same way, whatever I'm going through in my life, whatever sufferings, whatever trials, whatever failures I'm going through in my life, I must trust in Jesus. Because Jesus is my Lord. He has done everything for me. He has sacrificed his own life for me on the cross. And if God has given me his son, Jesus Christ, won't he give me all the other things also? So I must trust in him no matter what I feel in my mind. I should not depend on my feelings, but I must depend on my faith in God. Faith is dependent on the fact that God loves me as much as he loves Jesus. Amen. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देतो. आज चे वचन की आता ब्रदरनी वाचल्याप्रमाणे प्रभूचा आत्मा माझ्यावर आलेला आहे. खरोखर या वचनाबद्दल मी देवाला स्तुती करतो, धन्यवाद देतो. कारण आम्ही पवित्र आत्मे वाचून, त्याच्या सामर्थ्य वाचून आम्ही काही करू शकत नाही. कारण जेवढं आम्ही स्वतःला लीन नम्र करतो आणि प्रभूला शरण जातो, तेव्हा आपल्याला पवित्र आत्मा प्राप्त होतो. रात्री जे वचन मला ऍक्च्युली सांगायचं होतं, ते पण तुम्ही सांगताल नाही. दुसरे करीन 11वा अध्याय आणि 3 वचन. परंतु जसे सापाने आपल्या धूर्तपणाने हवेला टकवले, त्याप्रमाणे कशाने तरी तुमची मने ख्रिस्ताकडील सरळपण व शुद्धपण यापासून दूर होऊन बिघडली जातील, असे मला भय आहे. खरोखर हे वचन माझ्या जीवनाकरता प्रभूंनी एक नवीन प्रकाश प्राप्त करून दिलेला आहे. कारण पाऊल सांगत आहे, ख्रिस्ताकडे तुमची मने ख्रिस्ताकडे सरळपण व शुद्धपण यापासून दूर होऊन बिघडली जातील, असे मला भय आहे. म्हणून आता त्यासाठीच आपल्याला रोज आपण पवित्र आत्म्यामध्ये त्याच्यावर अवलंबून राहण्याची गरज आहे.
सरळपण आणि शुद्धपण. कारण या पृथ्वीवर आपण पापाने भरलेल्या जगामध्ये राहत आहोत. पुष्कळ वेळा आपण आपल्या मनामध्ये असतो. कारण मी गेल्या आठवड्यामध्ये एक ठिकाणी एका चहा पित असताना एकट्याला विचारलं, तुम्ही ख्रिस्ती आहे का? तर तो म्हटला, होय म्हटला, ख्रिस्ती आहे. मग मी म्हटलं, तुम्ही कुठल्या चर्चला जाता? तर तो म्हटला, मी कॅथलिक चर्चला जातो. बरं म्हटलं. मग मी म्हटलं, त्याला सुवार्ता सांगायचा प्रयत्न केला. तो मला म्हटला की आम्ही फक्त मरियेला मानतो. आम्ही जे प्रेज लॉर्ड म्हणतात त्यांना आम्ही मानत नाही. मी त्याला सांगायचा प्रयत्न केला की मरिया देवाने दिलेले एक पात्र होतं, त्याद्वारे तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जन्म होणे आणि पापांची क्षमा होणे, तो देवाचा पुत्र. परंतु मला काय सांगायचं आहे, या पाठाचा उद्देश काय आहे की प्रत्येक जण आपापल्या परीने काहीतरी सांगायचा प्रयत्न, कारण त्यांच्या पास्टरनी किंवा त्यांच्या फादरनी त्यांना सांगितलेलं असतं की तुम्ही दुसरं कुणाचं तुम्ही ऐकू नका, फक्त मरियेवर विश्वास ठेवा. परंतु हे मन शुद्धपण, कारण त्या व्यक्तीला ऍक्च्युली प्रभूचा आत्मा आहे, परंतु कोणीतरी काहीतरी सांगितलं म्हणून ते तिकडं वळतात आणि तिकडं त्यांच्या मार्गाने ते चालतात. परंतु मला हे सांगायचं आहे की देवाने आपल्याला आत्मा दिलेला आहे. त्या आत्म्याकडे वळून आम्ही खरं सत्य वचन शास्त्रात जेव्हा जातो ते वचन आपल्यासाठी कार्य करत असते. आता सरळपण आणि शुद्धपण आम्ही ते कसं राखून ठेवायला पाहिजे, ते आहे देवावरच्या विश्वासाने आणि प्रीतीने. देवावरील विश्वास आणि प्रीती. कारण यात्रेकरूचा प्रवास हे पुस्तक आहे. ते पुस्तक वाचत असताना त्या ख्रिस्ती आणि एक विश्वास माणसाला सांगितलेलं असते की एक गोल आहे, ते दरवाजा आहे, त्या जॉन बनण्याचे पुस्तक आहे ते, त्या गोल पर्यंत तुम्हाला जायचं आहे. परंतु तिथं जाताना मध्ये एक आडवी नदी असते, त्या नदीमध्ये पाणी असते. त्यातून जात असताना विश्वासू जो असतोय त्याला पाणी, नदी फुल भरलेली असत्या, परंतु तिथून जाताना तो त्याचा विश्वास असल्यामुळं आणि त्या दरवाजापर्यंत जायला त्याला एक इच्छा असल्यामुळं ते फुल भरले नदीचं पात्र त्याला ते कमी वाटतं आणि ते चालत गेल्यासारखं जातं. परंतु त्याच्या पाठोपाठ हा अविश्वासू एक असतो, तो पण जात असतो, परंतु त्याला ते नदीचं पात्र फुल पाण्याने भरल्यासारखं वाटतं, त्याला भीती वाटते कसं जायचं. हे आहे दोन्हीचा फरक. हे आम्ही जेव्हा एक ध्येयापर्यंत, प्रभूच्या जीवनापर्यंत, त्याच्या राज्याकडे जायला आपल्याला एक विश्वास असतो, तो जर विश्वास असेल आणि त्याच्यावर प्रीती असेल तर आपल्याला कुठल्याही गोष्टी आपल्याला मोठ्या वाटणार नाही. म्हणून मला एक वचन काल ते मन करायला मिळालं की गीतरत्न याचा 6वा अध्याय आणि 3 वचन. मी आपल्या वल्लभाची आहे आणि माझा वल्लभ माझा आहे. मी आपल्या वल्लभाची आहे, माझा वल्लभ माझा आहे. इथं एक पती आणि पत्नी, जेव्हा आम्ही एक वधू म्हणून आमचा ख्रिस्त जो आहे त्याच्यावर तो पती म्हणून जेव्हा आम्ही प्रेम करतो, तेव्हा आम्ही आमचे मन किंवा आमचे लक्ष या जगामध्ये, पृथ्वीवर कुठल्याही गोष्टीकडे आम्ही वळणार नाही, कारण इथं प्रीती आहे. म्हणून आम्ही आत्म्याने रोज आम्ही ख्रिस्ताला एक पती समजून त्याच्या रोज आम्ही प्रीती करायला पाहिजे, प्रेमामध्ये आपण राहिलं पाहिजे. आणि तसंच जुन्या काळामध्ये एक आहे उत्पत्तीचा 24वा अध्याय आणि 64 वचन. आणि रिबेकाने आपले डोळे वर करून इसाकाला पाहिले, तेव्हा ती उंटावरून उतरली आणि ती सेवकाला म्हणाली, हा जो पुरुष आम्हाला भेटायला रानात येत आहे तो कोण आहे?
तो सेवक म्हणाला, तो माझा धनी आहे. इथे एक मला सांगायचं आहे की हे खरोखर मी खोल आत्म्याने सांगत आहे की ख्रिस्त आपला वर आहे, तो आपला पती आहे आणि आम्ही जे विश्वासणारे आहोत आम्ही त्याची वधू आहे. म्हणून आम्ही जेव्हा वचनाकडे येतो तेव्हा पूर्ण आत्म्याने आम्ही त्याच्या प्रीतीमध्ये तो आता वर आहे त्याला आम्ही संतुष्ट करायला प्रयत्न करायला पाहिजे. आणि आता ब्रदर सांगितल्याप्रमाणे कोरोना वगैरे आहे हे सगळं तात्पुरतं आहे, परंतु आपल्यामध्ये जे आहे पाप ते मोठा रोग आहे. तो घालून द्यायचा असेल तर आपल्याला आत्म्याने भरून आपला जुना स्वभाव, जुना माणूस तो सर्व काढून टाकून आम्ही येशू ख्रिस्ताला शरण जायला पाहिजे. त्याला आपला तारणा म्हणून स्वीकारणे आणि त्याला आपला एक वर म्हणून स्वीकारणे आणि त्याच्यावर प्रेम करत राहणे, हेच आहे या पृथ्वीवरचं जीवन जगणे आहे. खरोखर हे सर्व विश्वासासाठी आहे आणि प्रभू त्या ठाई आपल्याला सर्वांना मोकळीत आहे. त्या वचनाबद्दल मी प्रभूला स्तुती करतो, धन्यवाद देतो. आमेन. आमेन. सर्वजण तर 2-3 मिनट जास्त नाही बोलायचं, सगळ्यांना बोलायचं है. खूप 3 मिनट के ऊपर मत बोलो, तो देखो टाइम करके देख लीजिए. हाँ सब लोग बोला. धन्यवाद देतो. आज सकाळी बोललेल्या वचनाबद्दल मी खरोखर आभार मानतो, कारण लुकूर शुभवर्तमानाचा 4 अध्याय 18-19 वचनाबद्दल प्रभूने जे सांगितलेलं ऐकणं आहे ते पवित्र आत्मा येईल गरिबांना सुवार्ता सांगण्याकरता. आज प्रभूचे हे वचन खरोखर सत्य आहे. त्याच्या आत्म्याने आम्हाला बलसंपन्न प्रभूने करायला पाहिजे, कारण आम्ही ज्या स्थितीमध्ये आता आहोत, ज्या स्थितीमध्ये जात आहे, ही केवळ प्रभूची दया आहे. आणि आतापर्यंत प्रभूने आम्हाला जे राखलंय ते त्याच्या खरोखर वचनाद्वारे राखलेलं आहे. दुसरे करीन त्याचा 1 अध्याय 24 वचन, आम्ही तुमच्या विश्वासावर धनी पण करतो असे नाही, तर तुमच्या आनंदाचे सहकार्य आहो, कारण विश्वासाने तुम्ही स्थिर राहता. प्रभूला स्तुती असो. विश्वासानेच आम्हाला आतापर्यंत स्थिर ठेवलं, याबद्दल मी प्रभूचे आभार मानतो. कारण प्रभूचं वचन आत्मा आणि जीवन आहे. कारण प्रभूच्या वचनाद्वारे प्रभूने आतापर्यंत आम्हाला ते राखलेलं आहे. तर त्याच्या वचनावर आम्हाला उभे राहायचं आहे, त्याच्या वचनावर आम्हाला स्थिर उभं राहायचं आहे. उभे राहण्याकरता प्रभूने जे का अभिवचन आमच्यासाठी दिलेलं आहे, आम्ही खरोखर त्या पापापासून आम्ही लांब असलं पाहिजे. योब ज्या वेळेला त्याच्याबद्दल साक्ष योबची मिळाली काय, तो पापाला भिणारा नीतिमान अशी त्याच्याबद्दल साक्ष मिळाली. आज देखील आम्ही एका ठिकाणी साक्ष म्हणून राहत असताना प्रभूपासून आम्हाला अशी साक्ष पाहिजे की आम्ही पापापासून दूर असलं पाहिजे. कारण रोमकरास पत्र याचा 6 अध्याय 14 वचनामध्ये सांगितलंय की पाप तुमच्यावर सत्ता चालवणार नाही, तर तुम्ही नियमशास्त्राच्या स्वाधीन नाही तर कृपेच्या स्वाधीन आहात. आज आम्हाला प्रभूने कृपेच्या स्वाधीन केलेलं आहे, त्याच्या कृपेच्या स्वाधीन आम्हाला प्रभूने ठेवलेला आहे. म्हणून प्रभूने जे आतापर्यंत आम्हाला राखलं त्याबद्दल प्रभूचे आभार मानतो, प्रभूला स्तुती करतो, धन्यवाद देतो. आमेन. आमेन. धन्यवाद देता हूँ. 22 से पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो हरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है. तो मैं बात देखता हूँ अभी हाल में ही परमेश्वर ने मुझे जहाँ पे मैं पहले काम करता था वहाँ पे 3.5 साल काम किया. परमेश्वर मुझे बहुत चीज वहाँ पे सिखाए. आने वाले समय में भी परमेश्वर ने कुछ मैं प्रेयर भी कर रहा था कि आने वाले समय में परमेश्वर मुझे जरूर यहाँ से भी निकालेंगे. तो अभी हाल में ही बहुत सारा आर्गुमेंट वगैरह हो गया. तो मुझे परमेश्वर ने एक चीज सिखाया है कि अविश्वासी और विश्वासी में क्या नाता, तो अधार्मिकता से क्या नाता. और परमेश्वर ने बताया कि मुझे कि बैड कंपनी करप्ट गुड मॉरल, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है. तो अभी हाल में ही वहाँ पे मैं काम अभी वहाँ छोड़ दिया जहाँ मैं काम करता था. तो मुझे मालूम था कि ये आत्मिक चीज के लिए बहुत ही खतरनाक है और वहां से हमें निकल जाना अच्छा है, क्योंकि लोग आत्मिक रूप से सीरियस नहीं है. परमेश्वर ने कहा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है
तो जो मृत्यु है वो आत्मिक मृत्यु सेकंड डेथ है। पहला शरीर में तो मरती, लेकिन सेकंड डेथ वो आत्मिक है। तो पाप तो हमें उनका भी चाल चलन हमें 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 सीखने से अच्छा है वहां से निकल जाए। तो परमेश्वर ने मुझे वहाँ बहुत आशीष किया जहाँ मैं काम पे था, और बहुत सारी चीजों से संभाला। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ का जो भी इंजॉयमेंट था, जो वो लोग रिच है, पैसे में है, धनी है, लेकिन परमेश्वर ने वो सब अभिलाषाओं से मुझे बचाए रखा। वो भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करना भाई बहन कि मैं आगे भी परमेश्वर में बढ़ूँ। आमीन। Amen. Praise the Lord. I want to share from today's Bible verse, Luke chapter 4, verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. So, to heal the brokenhearted means sin breaks hearts, and the Messiah has good news for the brokenhearted. To proclaim liberty to the captives means sin makes people captive and enslaves them, but Jesus comes to set them free. Recovery of sight to the blind means sin blinds us, and Jesus comes to heal our spiritual and moral blindness. So for each and every problem of sin, there is only one solution. So thankfully, Jesus didn't come only to preach deliverance or even only to bring deliverance. Jesus came to be deliverance for us. Thank you for this verse today. Amen. Amen. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने जो मौका दिया गवाहियों के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में जो वचन आ रहा है, हर एक वचन जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और भाई हमारे सेवक लोग को भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनकी प्रकाश के द्वारा जितनी भी बातें हमें सीखने को मिल रहा है। एक तो ब्रदर जॉर्ज ब्रदर बोले थे कि परमेश्वर को जानना और उसमें सहभागिता होना और परमेश्वर की प्रेम को मतलब दर्शाना, ये सब बातें प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत सारे काम किया है। और मैं प्रभु को आभारी दिल से धन्यवाद करता हूँ और हमारे सेवकों के लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि ये सारी बातें प्रभु ने उनके ऊपर जो खोला है। मैं उनके लिए प्रार्थना भी करता हूँ कि प्रभु हमारे चर्च को तो आशीषित करना और हर एक को प्रभु जी ये वचन के द्वारा चलने के लिए, क्योंकि मुख्य जो वचन है, जो हमारे जीवन से जुड़े हुई बातें हैं, तो पाप से हमें कैसे बचना है और पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये सब काम कर सकते हैं। हमारे जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसा बदलाव, मतलब मैं अपने आप को देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे गुस्सा था किसी के प्रति, मतलब जो हमारे साथ बुरा किया उसके साथ हम भी बुरा करें। लेकिन ये सारे बातें हमको सिखाता है कि दुश्मनों से प्रेम करना, बुराई के बदले अच्छाई से जीतो। तो मैं प्रभु को आभारी दिल से धन्यवाद करता हूँ सारे भाइयों के लिए, जो उनके द्वारा जो हमारे तक प्रकाशन जो पहुंचा है। मैं आभारी दिल से धन्यवाद करता हूँ। आमीन। आज दोन्ही जेवण आम्हाला त्या बद्दल पुढचे आभार मानते। याचा 4:18 वचन, प्रभूचा आत्मा माझ्यावर आहे, गरीबांना सुवार्ता सांगायला त्याने मला अभिषेक केला, पाप केलेल्यांना सुटका व अंधांना दृष्टी हे गाजवायला, ठेचलेल्यांना मोकळे होऊन पाठवायला आणि प्रभू मान्य केले वर्ष गाजवा त्यांना पाठवले आहे। प्रभू स्तुती असो याबद्दल। प्रभूचा आत्मा आमच्यावर आहे आणि आम्ही इतरांना स्वतः सांगण्यासाठी प्रभूने मला अभिषेक केलेला आहे, म्हणून आम्ही रोज त्याची सुवार्ता सांगण्यासाठी संदर्भ साधून घेणे गरज आहे आणि पुढचे मान्य केले वर्ष देखील गाजवायला त्यांनी मला पाठवले आहे। च्या सुंदर वर्षासाठी मी प्रभूचे आभार मानते, प्रभू स्तुती आणि धन्य देते। आमेन। प्रभु का स्तुति हो। मैं हर एक वर्ष को याद करता हूँ। प्रभु के सेवक से हमें जो रोशनी मिलती है, प्रभु की जो वाणी हमें समझ में आती है। We pray for deliverance of sin, not from coronavirus.
इसमें काफी कंट्रास्ट है। प्रभु के सेवक ने बताया कि हमें कोरोना वायरस से बचने का प्रार्थना नहीं करना है, बट सिन से बचने का प्रार्थना करना है। बिकॉज सिन हमें क्या लेके आता है? एंगर, लाइज एंड हेट्रेड। तो हमें एंगर है तो फिर वो वी किल पीपल अराउंड अस। हम लोग कितने लोगों के पास जाते हैं, और हमें एंगर है तो वी आर मोर डेडली देन कोरोना वायरस एंड वी अफेक्ट सो मेनी पीपल। और क्रूस का समाचार ये है, क्रूस का लहू ये कहता है कि सबके लिए दया, गरीबों के लिए दया, संसार के थके हुए लोगों की दया। वो प्रभु यीशु मसीह की छाया है, वो उसने हमें भी आबाद किया है। सो आई प्रे एंड ग्लोरीफाई लॉर्ड फॉर द ब्यूटीफुल इंसाइट। लूक 4 चैप्टर में 18 वर्ष जो कहता है कि इट वाज द लाइट, इट वाज द लाइफ विच वी नीड टू स्प्रेड टू द वर्ल्ड अराउंड। प्रभु की स्तुति करता हूँ कि ये छोटी सी मंडली में हमें प्रभु की वाणी, प्रभु के शब्दों का इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। सभी मंडली के सभी भाई बहनों का जो प्रेयर है वो मुझे प्रभु यीशु के क्रूस के नजदीक आने में बहुत ही हेल्प करता है। मैं इस छोटी सी अपॉर्चुनिटी, छोटा सा सौभाग्य के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। आज जो 30 अगस्त है, ऑलमोस्ट नियर द एंड ऑफ द मंथ, इस महीने के शुरू में जब ब्रदर जॉर्ज ने रीडिंग पोर्शन दिया था बाइबल का, तब मैंने वो रीडिंग पोर्शन को ध्यान दिया एंड आई सेड आई एम द मोस्ट इनडिसिप्लिन पर्सन इन बाइबल रीडिंग। कई बार अनुशासन नहीं होने के वजह से वचन एक दिन छूट जाता है, कई बार मेनी रीजंस, मतलब बाइबल नहीं पढ़ने के लिए बहाना अनेक होते हैं। But it's high time now is परमेश्वर के वचन को डिस्पाइस करना, उसको हल्के में लेना, this was all very wrong. In fact ये इसी के वजह से कई बार मैं नाश हो जाती हूँ, because the word of God says my people perish because of lack of knowledge about his will for me. तो परमेश्वर की स्तुति करती हूँ कि जब बाइबल रीडिंग पोर्शन दिया है तो I didn't want to take it lightly, तो I literally got down with my pen and my paper, और फिर जितने भी पुस्तक थे इस महीने के पोर्शन के लिए, जैसे हिब्रानी, याकूब, पहला दूसरा पत्रस एंड फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, सारे एक बुक्स में से मैंने वो जो नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो लिखे। लाइक फॉर इंस्टेंस हिब्रानी में 13 चैप्टर्स है, याकूब में 5, एंड फर्स्ट किंग्स में वी हैव some number of chapters. ये सारे chapters को total करके मेरे पास 142 chapters आए थे, and then I said कि ये अगस्त के महीने में मेरे पास 30 दिन है, तो मुझे इस 142 chapters को परमेश्वर मदद करके इस 30 दिन में मैं कैसे बांट कर रोज प्रतिदिन इसमें से सीखने के लिए। So then once I divided it, then the Lord helped me कि पुराने नियम से इतने chapters and नए नियम से इतने chapters, फिर भजन में से कितने एक chapter, and then नीति वचन में से एक चैप्टर से, रोज का एक नियमित शेड्यूल बनाकर उसे फॉलो करने के लिए ही हेल्प मी मेक अ प्लान। तो ये बाइबल रीडिंग के बारे में मैं बाइबल पढ़ती हूँ, शेड्यूल बनाती हूँ, इसमें घमंड करने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना यदि मैं नहीं करूँ तो मैं परमेश्वर की मर्जी को कभी नहीं जान पाऊंगी, बिकॉज परमेश्वर का वचन में से उसकी मर्जी को जानने का एक बहुत बड़ा जरिया है। एंड ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। सिर्फ एक वचन बताकर मैं बंद करना चाहूंगी। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 14, जहां पर इट सेज दैट आई वांट टू डू द विल ऑफ गॉड, दैट आई विल हैव अ राइट टू द ट्री ऑफ लाइफ। हिंदी में थोड़ा अलग से है कि वस्त्रों को धोने से, वो वस्त्र को धोने का मतलब ही वो पवित्रता को दर्शाता है। तो बेसिकली ट्री ऑफ लाइफ मेरे लिए, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास राइटफुली मुझे जाना है। देन आई नीड टू डू द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने इस तरीके से इस महीने में चला है, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को स्तुति देती हूँ। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hello. Can Yes, you hear my voice? Yes. Yes. Praise the Lord. जर जोराने बोला, मोठ्याने बोला। हेलो प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यस। जो अभी लूक का चैप्टर 4 उसमें से 18वां अध्याय, जिसमें कहा है की प्रभूचा आत्मा माझ्यावर आहे, कारण गरिबांना शुभवर्तमान सांगायला त्याने मला अभिषेक केला आहे।
ये जो वचन है मेरे को बहुत मतलब जो रीड कर रहा था मेरे को पता चला, और जब हम कल भी पाप के टॉपिक पे जब ब्रदर बता रहे थे हमको, मेरे को वो बहुत मतलब फील हुआ, टच हुआ कि हमको प्रभु का, हम सबको प्रभु का आत्मा मिल गया है। क्योंकि मत्ती का 12वां अध्याय और उसमें से मत्ती का 12वां अध्याय और जस्ट मिनट 18वां वचन, उसमें ये कहा है की पहा माझा सेवक, त्याला मी निवडले आहे, माझा प्रिय, त्याच्यामध्ये माझा जीव संतुष्ट आहे, मी आपला आत्मा त्याच्यावर ठेवीन। उसमें कहा है कि उनका जो आत्मा है त्याच्यावर ठेवीन, कि वो जो आत्मा है हमको लीड करने वाला है। जब हम खुद को नम्र करेंगे, खुद को प्रभु के स्वाधीन करेंगे, तब वो आत्मा हमारे साथ रहेगा। और वो उस आत्मे से हमको चलने के लिए सिर्फ हमको प्रेम और नम्र और वो राइचियस का नीति का जो मार्ग है वो चुनना चाहिए। जब हम इतर लोगों को, गरीब लोगों को प्रीति करते हैं, जब हम एंगर को, अभी एक ब्रदर ने बोला कि हमारा जो गुस्सा होता है, जो गुस्सा हम वो वही कारण रहता है कि हम दूसरे लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। लाइक कोरोना इज अफेक्टिंग वेरी फास्टली, लाइक सेम वे हम जब गुस्सा होते हैं, हम जब इतर लोगों पर जलस होते हैं और हम अपने सेल्फ से कुछ तो करना चाहते हैं, तब हम आत्मा से बाहर हो जाते हैं, हम प्यार से, हम नीति से बाहर हो जाते हैं और शैतान के अधीन हो जाते हैं। तो अभी हमको पाप को अलग करने के लिए हम खुद को कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमको पाप से मुक्त करने के लिए समर्थ है। और हमको सिर्फ यही बात याद में रखना है कि हम प्रभु के आत्मा में रहे, क्योंकि आत्मा का जो फल है वो है प्रीति, दया, शांति, नम्रता। उन सब के फलों के लिए हमको झटना है। इसलिए हम जब एक फार्मर कोई मतलब खेती करता है, वो खेती करते समय वो जितना अच्छा है उस अच्छी तरह से उसकी ख्याल रखता है। हमारे पास शुभ वर्तमान आया है, उस शुभ वर्तमान को हम अंदर लेके उसको उसके लिए हम ख्याल रखना है और उसके स्वाधीन चलना है। और जब हम फल देंगे वो आत्मिक ही फल देंगे, जो कि प्रीति, दया और शांति, नम्रता जैसे फल होंगे। और यही फल आत्मा का फल होता है। और इस फलों के वजह से प्रभु हमको उनके आत्मा के नीति के मार्ग पर चलाएंगे। प्रभु ने ये वचन दिया, इसलिए मैं उसका स्तुति और आभार मानता हूँ। आमीन। थैंक यू। और किसी को जरा बोलना है, कुछ गवाही देना है? हाँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। याकूब 3 का 8वां वचन, पर जीव को मनुष्य में कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं और प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी में हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुई है, श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते से एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। ये वचन मुझे खूबी, प्रभु ने हमेशा मुझे ये वचन दिखाया है और बताया है, क्योंकि मुझे बार बार बहुत सारी बातें बोलने की आदत है। मेरी भी जबान कभी रुकती नहीं है। अगर कोई एक बार कोई टॉपिक को मैं छेड़ देती हूँ तो उसके ऊपर 10-20 सवाल करती रहती हूँ। तो बार बार ऐसी बोलने की जो मेरी आदत है, बहस करने की जो आदत थी,
जब मैंने ये वचन पढ़ा और जब मैंने ये वचन को मेरे दिमाग में रखा तो मुझे मालूम पड़ा कि प्रभु मुझे क्या बोलना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। तो ये वचन पढ़ने के बाद ही मैंने अपनी जबान पे काबू कर पाई हूँ। और ये जबान को कब काबू कर पाई हूँ, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे वचन के द्वारा बताते हैं। Can I share? Yes, yes, please. Brother, can I share? Yeah. I'd like to thank God for this time. Just wanted to share about one part of Job's life which touched me, and it has really touched my heart. In Job Job chapter 32, Job chapter 22. Here we see there is a portion where Eliphaz asked Job to repent from his sins, and the Holy Spirit was speaking to Eliphaz about his unrighteous way. So in verse from chapter 22, in verse 21, he says that, "Yield now and be at peace with him, thereby good will come to you. Please receive instructions from his mouth and establish his words in your heart." And in 24, he says that, "And place your gold in the dust and the gold of Ophir among the stones of brooks." So here we see Eliphaz is asking Job to repent from his unrighteous way, because he might have something he has kept in his possession which is unrighteous way. He says that whatever you have stored which is unrighteous, he says that it has to be cast away to the dust. So we know that Job was a richest person. So by the grace of God or the Holy Spirit speaking to Eliphaz that, see, Job has done this, you have to speak to him and he has to confess his sin and throw away whatever the unrighteous way, unrighteous way he has possessed, he has to throw away in the dust. And the gold of Ophir, it was that is a very valuable thing, and he says that to throw away in the rivers. So if I see this was in the Old Testament. If I see the Old Testament itself, God is asking Job to repent. So we are living in a new covenant, how we should be. So I should compare these with the new covenant. So whatever the unrighteous way I am walking all these days, all these years, after coming to God, I have to cast away everything. I should put away, and I have to put that should be dust. There's nothing should be there in my heart. So when I come to the presence of God, it should be clear and it should be very pure in heart. Then God will accept. In the next word he says, then there is a then the Almighty will be your gold. In 24:5 verse it says, then the Almighty will be your gold and the silver to you. So and he will delight in your Almighty and lift your face. Then I can lift up my face to God. So until then, if I have the unrighteous way, I cannot lift up to God and my prayers will not be answered. So I should ask myself inside that what is the unrighteous, or what is unrighteous way? Even the smallest thing I want to confess to the Lord when I come to the presence of God. So I have to confess before God and ask God to fill me with the Holy Spirit and ask me where I have failed, where I have lacked, where I am lacking to come near to God. This is a passage which spoke to me that whatever the wickedness I have done, I have to come clear. I have to push all the things and come to God and confess before Him and put down my face down and ask Him to forgive. Then God will lift up me. And says in 27 says you will pray to Him and He will hear you. Then God will hear our prayer. Otherwise, it will not be heard. It will not be. It will. Whatever you pray, whatever you fast, you pray, nothing will be heard until you confess whatever there. God will show what is there, but we have to come to God. So this is what God spoke to me. One more last verse which I like to share. Paul is asking Timothy in 2 Timothy verse 2. It is contrast to same 2 Timothy verse chapter 2. He says in 21 and 22. Therefore, if anyone cleanses himself from these things, he will be a vessel for honor, sanctified, useful to the master, prepared for every good work. And now flee from youthful lust and pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord from a pure heart. So I should be when I come to God, I should have
pure heart. Not there is one sin, there is small sin which is in me, and I come to God, God will not accept. So I should run from all these things, and I had to come. I should be a good vessel to God. Amen. I just want to share quickly. I was recently reading a book of Brother Sandeep Punan called God Speaks Through Animals. So when I was reading that book, I was initially feeling that it was a good book, but it was somewhat like maybe written from a children's perspective because of the kind of examples used. But as I continued reading, I was very much blessed by a particular chapter I read. I just want to quickly tell the gist of it. The chapter was titled Elephant. So he was giving an example from the life of elephants. So Brother Sandeep Puran was saying that elephants by nature are really big and strong animals. And ideally speaking, they should not be tamed. Yet we see many a times elephants carrying around lots of big loads, tree trunks, or sometimes even in circuses. So how is it that these human beings have achieved this feat of taming elephants? So he says that when elephants are really small, the owners tie it up using certain steel rings on all four legs. These steel rings are linked to chains, and these chains are then attached to a pole. And this elephant, from the time it is a small elephant, grows up always in bondage. And because it grows up in bondage, it tries to break free all the time, trying to move from that pole, but it is unable to move from that pole. And eventually it keeps hurting itself, even its skin goes off, and the steel starts pressing against its flesh. So as time goes by, as it keeps growing, it gets used to living in bondage. It gets used to feeling that pull around its four legs of those steel brackets, and eventually it just accepts being a slave. So slowly, the chain that is attached to the ring is replaced by a rope. And eventually, even the rope is gone, only the steel ring is around the legs of the elephant. But the elephant, which has grown up always with the feeling of those rings around its leg, even though now the chain and the rope are gone, it's actually not bound. In its mind, it is still bound. In its mind, it still thinks it's a slave because it constantly feels the rings around its leg. And what he was saying is that this is the same thing with believers also, that even though Jesus has set them free from the power of sin, because they've grown up and lived for so many years in the bondage of sin, they are not able to shake off that feeling. They still continue to think that, they are slaves. I was extremely, blessed by reading that chapter. It spoke to me very much, directly. What happens is, it can be that, before we come to Christ, we're completely dead in sin. Once we come to Christ, God changes us. There are certain sins that we are liberated immediately. Certain sins, certain besetting sins, we have to then start fighting. What eventually God may free us from that also. What we think is that once you are freed from sin, we think that, okay, from now on, this sin should not even, even the smell of it should not come near me. But we may experience that for some time, but then eventually, when the devil comes back again with that same old temptation, we begin to feel a pull in our flesh. And that pull can seem very similar to the pull that we had when we were still in bondage. And what the devil will tell you at that time? This shows that you're not yet free. And you, in your mind, you'll be like, no, I know God has delivered me. I know He has spoken to me clearly. I have experienced it. But why is it that I'm still feeling that same pull? And the devil will say, that's because you're not free. And the moment the devil starts putting that doubt in your mind, it's just a matter of time before you fall. So what this is saying is, last week I remember I read through Romans also, Romans 6. The same is there even in the book of Romans, that when we are born again and when we are set free from God, our spirit changes. We become a new person, become a new man. But our flesh remains the same. And when these temptations come, these old besetting sins come in our life again, we will feel the pull in our flesh very similarly like we felt at that point of time. At that time, we should not get discouraged thinking, oh, that means I'm not free. No. That is the time when we have to believe that, no, I am free. And this pull that I'm feeling, it's only in my flesh. Unlike the old times, when the old man was there, I was obligated to so this pull I had to. But now as a new man, I no longer need to respond to this pull. I am free to rather take my flesh and make it subject to Christ. So the starting point is faith. If I think, no, I will just fight it, I'll fall. It won't work. The starting point is faith.
No, Lord, I believe I'm free. I am a new man. This pull that I'm feeling, it does not mean that I'm not free. It just means that I still have a flesh. And my flesh will take some time to be renewed because of all the past years of indulgence. But till that time, I'm still going to believe that I'm free. And I'm not going to respond to this call. I'm going to confess that I'm free and I'm going to subject this flesh to Christ. And in time, even the flesh will be renewed and these feelings of pull will also go away. So I was very much blessed by that chapter. I would really recommend everyone to read that book. It's a very simple book. Thank you. Brother, can I share the word if you have time? Yeah, just 2-3 minutes. Yes, okay. I want to share from Job chapter 3. This is 25 verse, where it says, what I feared has come upon me, what I dreaded has happened to me. So in this chapter, we see that, Job was a upright man, he was a blameless man, and God really delighted in him because of all this. But somewhere to the end, he always feared for something, no wonder, is to always bring his children after they would come together for feasting and everything. Then he is to sacrifice and is to, ask forgiveness for God if my children have sinned against you and all. But the other way is he feared God. He feared for something else also. He dreaded so much that it came to pass in his life. So the same thing works even in our life. Now we see all this pandemic thing happening around us. There's so much of fear that is gripped around us. So even for a believer, when we keep hearing all these things, somewhere the fear grips us. But then this is what, the Lord says that I have overcome, we are delivered from every power of darkness. So when we look at Christ, we know, Lord, that we are set free from this fear. We can replace this fear with faith. So this is what I wanted to share. And this word has really blessed me with that no more walking in fear, but in faith. Thank you. So we don't have much time now. We can continue sharing with the other meeting. So we'll come to the Lord's table. Second translate. Yes, brother. So we come to the table of the Lord. हम प्रभु भोज में आएंगे अभी. And this is a very happy occasion because we are going to celebrate the fact that Jesus died for us. तो ये बहुत ही खुशी का मौका है कि हम आनंद मना सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गए. This is what Jesus said, you must do it. As often as you do it, you think of the very fact that I died for you. तो यीशु मसीह ने यही कहा कि जब जब आप प्रभु भोज करोगे तो इस बात को याद करो कि यीशु मसीह आपके लिए मर चुका है क्रूस पर. So we remember the death of Jesus. हमें यीशु मसीह का जो मरण है उसको याद करना है. Most Christians will remember only the birth of Jesus. तो बहुत सारे मसीही हैं सिर्फ यीशु मसीह का जन्म को याद रखते हैं. And we must remember the death of Jesus every day so that we also can die to the world and live for God. तो हमें यीशु मसीह का जो मरण है प्रतिदिन याद करना है ताकि हम भी अपने शरीर की अभिलाषाओं में प्रतिदिन मरे उसके लिए. In 1 Corinthians chapter 10, पहला कोरिन्थी 10 अध्याय verse 16, 16 वचन. it says, is not the cup of blessing which we bless a sharing of the blood of Christ? Is not the bread which we break a sharing in the body of Christ? वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या वह मसीह के देह की सहभागिता नहीं? So when we break bread, we share in the life of Christ. जब हम रोटी तोड़ते हैं तो यीशु मसीह का जीवन को हम सहभागी होते हैं उसमें. And we drink of the cup, that is a blessing for us. और जो कटोरे में से पीते हैं वो हमारे लिए आशीष का कारण है. What is the meaning of that? उसका अर्थ क्या है? The more we remember that Jesus died for us, the more grateful we become and the more we progress closer to the Lord. जितना हम याद करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरे हैं तो उतना ही हम परमेश्वर की ओर आभारी रहते हैं, उतना परमेश्वर के करीब हम होते जाते हैं. The more we remember that Jesus died for us and the wonder of it becomes more and more important for us.
तो जितना हम याद करेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए मरे हैं, तो वो हमारे लिए और मुख्य स्थान पे हमारे लिए मुख्य बात होते जाएंगे. Because it says in second Corinthians chapter 5, कहा है 2 कोरिन्थी 5 अध्याय में, verse 14 and 15. 14 और 15 वचन. For the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died, and he died for all, that they who live should no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा. The more we think how Jesus lived and died for us, then we also will die to ourselves. तो जितना हम सोचेंगे कैसे यीशु मसीह हमारे लिए जिए और मरे, तो हम भी जो है खुद की स्वार्थी इच्छाओं के लिए प्रतिदिन मरेंगे. All the love for the world, the things of the world, and the love for bad habits, all these things drop out. जितना भी इस संसार के लिए प्रेम, संसार की अभिलाषाओं के लिए जो प्रेम, जो बुरी आदतों के लिए जो प्रेम है, वो सब कुछ चला जाएगा. Now our aim and ambition will be to please the Lord. तो अभी हमारा उद्देश्य और लक्ष्य एक ही होगा, परमेश्वर को प्रसन्न करना. Because he died for us and rose again on our behalf. क्योंकि वो मर चुके और वो जी उठे हमारे लिए. He died for us for all our sins, the forgiveness of all our past sins. तो वो मरे ताकि हमारे जितने भी पुराने पाप है उसमें से हमें क्षमा देने के लिए. And he rose up. और वो जी उठे. Because he is a living God, he filled us with the Holy Spirit. क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए उन्होंने हमें पवित्र आत्मा से भरा है. So we can follow him. ताकि हम उनका पीछा कर सके. We should not follow our own old bad habits and customs. तो हमारे पुराने रीति विचार, पुरानी आदतों का पीछा अभी हमें नहीं करना है. We can walk as Jesus walked. हम यीशु मसीह के समान चल सकते हैं. That is the greatest blessing. वही है सबसे बड़ी आशीष. The greatest vocation blessing is to behave like Jesus and to walk in his footsteps. तो बहुत बड़ी आशीष यही है कि यीशु मसीह के समान जीना और यीशु मसीह के पद चिन्हों के पीछे चलना. And as Acts 10:38 says, we can go about doing good. जैसे कि प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा हुआ है कि हम भलाई के काम करते हुए जा सकते हैं. And healing all those who are oppressed by the devil. और जो उन लोगों को चंगा कर सकते हैं जो शैतान के द्वारा उसके दबाव में पड़े हैं. And there will come an enthusiasm and a love for God in our heart. तो एक उत्साह और परमेश्वर के लिए प्रेम हमारे जीवन में आएगा. So that is why the Lord told us to remember his death by breaking of bread. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि उनके मरण को हमें याद करना है इस प्रभु रोटी तोड़ने के द्वारा. This is not just an empty ritual. तो एक रीति रिवाज नहीं है ये. Because the Lord has commanded it for all the saints to do it. तो प्रभु ने हम सभी जो संत हैं उनको आज्ञा दी है इस बात को करने के लिए. So we have to do it in spirit. It doesn't have to be wine or it doesn't have to be bread that it was broken, but in spirit we are there with the Lord. तो ये हमें आत्मा के द्वारा करना है. यहाँ पे कोई दाख मधु या तो फिर कोई दाख रस या रोटी की जरूरत नहीं, परंतु हमें विश्वास के साथ आत्मा के द्वारा इन चीजों को करना है. And when we do it in spirit, then we know that we are encouraged spiritually. जब हम आत्मा के द्वारा ये करते हैं तो हम जानेंगे कि हम आत्मिक रीति में उत्साहन प्राप्त करते हैं. We have a love for the Lord, love for the Lord's people. तो हमारे अंदर परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए प्रेम रहेगा. We all do it not just individually, but we do it together as the body of Christ. तो हम अकेले नहीं करेंगे चीज, हम यीशु मसीह का देह समझकर ये चीज को करेंगे. Breaking of bread is only done among disciples. तो जो रोटी तोड़ना है वो चेलों के बीच ही होता है वो बात करने का. Who repented from their sins and desired to follow the Lord. जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया है और जो परमेश्वर का पीछा करने के लिए अभिलाषा रखते हैं. However weak we are, God is there to encourage us. कितने भी कमजोर हम क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर हमें हमेशा प्रोत्साहन देते हैं. He wants to free us from being captive. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बंधनों से छुटकारा पाए. He wants to encourage us, all those who are discouraged.
तो परमेश्वर उन सारे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं जो निराशा में पड़े हैं and open our spiritual eyes और हमारी आत्मिक आंखों को खोलना चाहते हैं and tell us that we have a good future ahead of us, not for our calamity, but to give us a future and a hope. और परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छा भविष्य रखा है, हमारे लिए विपत्ति के लिए नहीं परंतु एक अच्छी आशा और एक अच्छा भलाई के लिए हमारा भविष्य है। What a wonderful blessed Lord we have. कितना ही आश्रित प्रभु हमें परमेश्वर ने दिया है। Who is there in our presence with us today? जैसे वो हमारे आज मध्य है यहाँ पे, and we will thank God for him. हम उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। Ask Brother Ratnaswamy to pray for the breaking of bread and the wine. It is great privilege to come to your table, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your kindness, love, Lord Jesus. By the death of cross, you have freed us from all darkness and sin and the power of sin, Lord. Thank you, Lord. As you commanded, we remember your death as often as possible, Lord Jesus. It is your grace we are participating here. Bless all the brothers and sisters who are participating in this, Lord Jesus. Not our own righteousness, but by your righteousness we are coming to you, Lord Jesus. Bless us, Lord Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. So I hope all of you all have brought the drink and a piece of bread or chapati, whatever it is, or biscuit. And let us take the bread first and then the drink after that, and thank the Lord and thank God, and thank God for the fellowship, thank God for the church, that God has given us word of eternal life, that God can speak to us through the church. So we'll take it and they will play a song as we are taking it. So Brother Padman can start that song, which I suggested. So we'll start that song and then we can partake of it. So let us take it. Let's stand and really sing it with all our hearts. Fairest of all the earthly sign, chiefest of all unto thy bride, fullness divine in thee I see, wonderful man of Calvary. Set
sinner life and peace, granting this captive sweet release, shedding his blood to make us free, merciful Lamb of Calvary, that man of Calvary has won my heart from me, and died to set me free, blessed Lamb of Calvary. Amen. So I hope all of us have taken the bread and the drink. Thank the Lord, and God will definitely encourage us. प्रभु हमको जरूर प्रोत्साहन करेंगे, प्रभु के संग हम चल सकते हैं और चलेंगे, विश्वास देंगे हमारे जीवन में कि जो कुछ भी प्रभु हमारे जीवन में लेके आता है वो हमारा अच्छा के लिए है, और प्रभु का महिमा पवित्र आत्मा से भर के हम प्रभु में आगे जाएंगे, और प्रभु का जो कुछ भी कार्य है हमारे जीवन में हो जाएंगे। ये विश्वास के साथ हम रोज दिन प्रतिदिन चल सकते हैं। प्रभु हमारा अच्छा के लिए सब कुछ करते हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, और प्यार और बढ़ते जाना है दिन प्रतिदिन। So let us thank and praise the Lord. Thank God for the Sunday and thank God for the fellowship. And request you the end of August, अभी अगस्त का महीना पूरा होने वाला है। अगले महीने में हमारा बाइबल रीडिंग है। नया नियम में